ہم بائبل مقدس میں سیکھیں گے پولس رسول ہمیں کس قربانی کی بات کرتا ہے. رومیو میں لکھا ہے پس ہے بھائیو میں خدا کی رحمتیں تمہیں یاد دلا کر تمہارے آگے درخواست کرتا ہوں. پولس رسول بڑے بوجھ کے ساتھ بڑی فکر مندی کے ساتھ کلیسیا کے آگے درخواست کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دعا بھی کریں عبادت بھی کریں لیکن ہماری باڈی کچھ اور کر رہی ہو. پولس رسول آرڈر بھی دے سکتا تھا. ایک بڑا وفادار خادم ثابت ہوا ہے. پولس رسول نے کہا ہے کہ اگر کوئی اپنے جسم پر فخر کرے تو میں اس سے زیادہ فخر کر سکتا ہوں. اگر کوئی بھوکا رہنے کی بات کرے قربانی دینے کی بات کرے تو اس نے کہا میں نے کئی دفعہ بیعت بھی کھائی ہے, میں کئی دفعہ فاقہ کاٹا ہے, میں خداوند میں مضبوط ہوں. آمین. اس طریقے کے ساتھ وہ کہتا ہے میں, لیکن پھر بھی اس نے کہا میں تمہارے آگے التماس کرتا ہوں. بڑی تسلی کے ساتھ کلام کو سننا, آپ برکت پائیں گے. دھیان سے سننا. پہلی بات قربانی کی بات. اس نے کہا کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو. نظر پیش کرنا, کسی کے آگے نذرانہ پیش کرنا, کسی کے لیے اپنا دے دینا, قربان کرنا. پولس رسول کہتا ہے کہ لوگوں نے غیر قوم کے آگے اپنے آپ کو قربان کر دیا اور بتوں کے آگے اپنے بچوں کو قربان کر دیا. میں مسیح کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہوں. ہاللیلویا. یہ اس کی بڑی دعوے دار اور بڑی خوبصورت ایگزامپل ہے. یہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. اس نے کہا میں تمہارے آگے بھی درخواست کرتا ہوں, میں التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن کیا پیش کرو, اپنے بدن, کوئی دوسری چیز نہیں, اپنے بدن کو پیش کرنا ہے تمہیں, کیونکہ تمہارے لیے مسیح نے اپنے آپ کو قربان کیا ہوا ہے. آمین. مختصر طور پر یہی تمہاری مقبول عبادت. تم قبول ہو جاؤ گے, خدا کو تم پسند آ جاؤ گے. یہ قربانی خدا کے حضور میں آتشین قربانی, ایسی قربانی جس سے خدا خوش ہوتا ہے. آمین. کون سی قربانی؟ اپنے آپ کو پیش کر دینا, اپنی خواہشوں کو مار دینا. اور پھر نیچے نصیحت کرتا ہے انہیں کیا اس دنیا دے جہان دے ہم شکل نہ بنو. یعنی کہ دکھاوے کہ ہم کچھ اور ہوں, اندر کے ہم کچھ اور ہوں, یہ نہیں. خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا, بلکہ بائبل میں لکھا ہے ہم کہیں بھول نہ جائیں. ہم بھولے نہیں ہیں, ہم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ خدا جانتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ خدا دلوں اور گردوں کو جانتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ خدا ہماری سوچوں کو جانتا ہے. ہم داؤد کی طرح جانتے ہیں کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ ہی میں تھا تو میرا خدا میرے انجام سے واقف تھا. جان کے پھر بھی اسی اپنے رویے اپنی سوچ جڑیے وہ چینج نہیں کرتے. ہم جان بوجھ کر تو نہیں کہیں ایسا کر رہے. ہم کہیں یہ تو نہیں سوچتے کہ خادم کہتے رہتے ہیں کہنے دیں. میں نے کلیسیا کو بہت ساری باتوں میں کوڑ متی کرتے دیکھا ہے. خدا کے لیے ہم سب کلیسیا میں بیٹھے ہوئے, ہمیں چاہیے کہ ہم کوڑ متی نہ کریں. ہم مسیح کا بدن ہے. جس بدن کے حصے کو, جس شاخ کو پھل نہیں لگتا, مالی اس کو کاٹ کے لگ کر دیتا ہے. یہ جگہ کیوں روکی ہوئی ہے؟
आमेन हालेलुया। ये पौधे को क्यों रोके हुए है? ये उसके लिए रुकावट का सबब है। कुर्बानी क्या है? इबार की किताब उसके दूसरे बाब से कुर्बानियों का जिक्र शुरू होता है। पहली कुर्बानी अहदे अतीक में सौतनी कुर्बानी, वो कुर्बानी जो हम खुदा के हुजूर में ये कहते हैं, खुदावन अगर तू मुझे जिंदगी दे दे, अगर तू मुझे मौका दे दे, तो मैं तेरे हुजूर में ये लाऊंगा। और ये जो कुर्बानी है बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो मुकम्मल तौर पर जलाई जाती है। हालेलुया। अपने आप को पेश करना और फिर उस बेऐब बरे को मुकम्मल तौर पर खुदा के मज़बा पर जलाया जाता, थोड़ा नहीं सारा जलाया जाता। क्यों जलाया जाता? सौखनी कुर्बानी, खुदा के हुजूर मुकम्मल तौर पर पेश किया जाता। पूरा जानवर खुदा के हुजूर में पेश किया जाता। क्या जब हम कोई ऐसी ब्लेसिंग पाते हैं तो पूरे तौर पर क्या इस बरकत को समझते हैं? दूसरी नज़र की कुर्बानी, ये एक ऐसी कुर्बानी है जो खुदावन के हुजूर में खुदावन यीशु मसीह को पेश करती है। खुदा ने यहोवा खुदा ने खुदावन यीशु मसीह को जो है इस दुनिया की नजर कर दिया, कुर्बान कर दिया कि आपकी जगह इसकी कुर्बानी दी जाएगी। गुनाह हमारे, लानते हमारी, ज़नाकारियां हमारी, नाफरमानियां हमारी, बागे अदन से निकले हुए हम लोग, लेकिन वापस जो है वो खुदावन यीशु मसीह के वसीला से कलीसिया को दाखिल करने का खुदा वादा करता है। आमीन। खुदा की कुर्बानी, ये कुर्बानी एक सलीबी नक्शा खींचती है। खुदा हम करते हैं और बेअहद बरा जो कोई जानवर नहीं है, खुदा ने अपने बेटे को पेश कर दिया। आमीन। कलीसिया का नाम ही कुर्बानी है, चर्च का नाम ही खुदा के नाम को जलाल देना है। इसलिए मेरे चीजों हमें ये चाहिए कि ये वो कुर्बानी है जब कभी हम गलत फहमी से, नादानी की हालत में, बेअक्ली की हालत में, अपने जिस्म की ख्वाहिश की हालत में, लालच की हालत में गुनाह करते हैं, तो मेरे चीजों इसको खता की कुर्बानी देना उसके लिए जरूरी है। लेकिन ये कुर्बानी आपके और मेरे लिए खुदावन यीशु मसीह ने, खुदा के बेटे खुदावन यीशु मसीह ने अदा की है। आमीन। बेअहद बरे की कुर्बानी है ये। लेकिन पौलुस रसूल कहता है, मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं। क्या करता हूं? कि अपने बदन को खुदा के लिए नजर करो, खुदा की रहमतें याद दिलाकर इल्तिमास करता हूं कि क्या करो? अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए खुदा की नजर करो। किसकी नजर करो? क्यों खुदा की नजर करें? अपने आप को खुदा के सबूत क्यों करें? क्या हम समझते हैं कि जब हमने तौबा कर ली तो अब हम हमेशा की जिंदगी पाएंगे? ऐसा नहीं है। जब तक इंसान अपने बदन की कुर्बानी से मुराद के अपने जिस्म की ख्वाहिशों को खत्म नहीं करेगा, उसको मार मटाएगा नहीं, उतनी देर तक मेरे चीजों उसका बदन जिस्मानी और रूहानी तौर पर बाइस से बरकत और खुदा के नाम को जलाल देने के जो है काबिल नहीं हो सकता। आमीन। कैसे? ये जो बदन है, कुरिन्थियों की कलीसिया, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां बाब, यहां पर लिखा है, क्या तुम जानते हो तुम्हारा बदन रूल कुदस का मक़दस है। हालेलुया। तुम्हारा बदन रूल कुदस का मक़दस है। किसका मक़दस है? रूल कुदस का। और इसमें रूल कुदस बसा हुआ है।
इसमें रूल कुदरत है और वो तुम हो। वो कौन है? कोई और नहीं। आए चेक कीजिए, क्या ये बदन खुदा के रूल कुदरत का मकदस है, उसका घर है या किसी और चीज का घर है? ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। जिसने अपने बदन की कुर्बानी ले ली, जिसने अपनी ख्वाहिशों को मारा नहीं है, वो खुदा के लायक नहीं है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। लिखा है रोमियो उसका 6वां बाब 6 आयत में, चनांचे हम जानते हैं कि पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब हो गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह के गुलाम न रहे। आगे को गुनाह के गुलाम न रहे। बाइबल सिखाती है कि जब इंसान तौबा करता है उसके गुनाह मसलूब हो जाते हैं। हमें अपनी ख्वाहिशों को मारना है। जब तक हम अपनी ख्वाहिशों को मारेंगे नहीं, हम बाइसे बरकत नहीं। अब खुदा के एहकाम कुर्बानी के लिए खुदा का ऑर्डर है। पौलुस रसूल इल्तिमास कर रहे हैं और ऑर्डर कर रहे हैं। कैसे? रोमियो 6 बाब उसकी 13वीं आयत, अपने इज़ा नारास्ती के होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो। अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो। हमने जिस्मानी ख्वाहिशों को मुर्दा कर दें। 1 कुरिन्थियों 3 बाब आयत नंबर 17, अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा। खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। हालेलुया। खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। अगर हमारे बातन के अंदर, हमारी नीयत के अंदर बुरी ख्वाहिशें पड़ी हुई हैं, तो फिर मेरे अजीजों हम खुदा के मकदस की इंसल्ट कर रहे हैं। इसमें नापाकियां पड़ी हुई हैं, इसमें गुनाह पड़ा हुआ है, बुरी ख्वाहिशें पड़ी हुई हैं, तो फिर मेरे अजीजों अगर हम अपने बातन की हिफाजत ना कर पाए तो खुदा तुम्हारे रूह को भी जहन्नम में डाल देगा। इसलिए मेरे अजीजों हमें खुदा के प्लान को और खुदा की इस खूबसूरत मोहब्बत को समझने की भी जरूरत है, और इसके साथ साथ बड़ी एहतियात करके खुदा के कलाम के मुताबिक भी चलने की जरूरत है। आमीन। मत्ती की इंजील के 6 बाब की 26वीं आयत में बड़ी खूबसूरत आयत है। लिखा है कि 6 बाब की 26वीं आयत में, हवा के परिंदों को देखो। मत कीजिए ऐसा, मत सोचिए कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे ये झूठ बोलना पड़ेगा, मुझे ये लालच करना पड़ेगा तो फिर ही मेरे घर का निजाम चलेगा। अपने आप को ऐसी बातों से निकालिए, मेरी जॉब ऐसी है, मुझे झूठ बोलना लाजमी है, नहीं तो मेरी जॉब नहीं चलेगी, निजाम नहीं चलेगा। आपका निजाम आपका खुदा चलाता है। आमीन। जिसने ये कहा कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारी फिक्र है। मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 26वीं आयत में, हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, तो फिर भी खुदा की क्या करता है? फिक्र करता है। क्या करता है? तुम्हारी कदर इनसे कहीं ज्यादा है। तुम्हारी कदर इनसे कहीं ज्यादा है। खुदा ने इंसान की कदर तमाम परिंदों दरिंदों सबसे ज्यादा जो है इनसे बढ़ाई है, बल्कि फरिश्तों से भी ज्यादा खुदा ने इंसान की कदर बढ़ाई है। उसने कहा आखिरी दिनों में तुम फरिश्तों का भी इंसाफ करोगे, तुम उन तख्त पर बैठोगे और मेरे साथ क्या करोगे? फरिश्तों का भी इंसाफ करोगे। लेकिन
इंसान को कुर्बानी देने की जरूरत है। इंसान को कुर्बानी से मुराद अपने बदन की कुर्बानी। बुरी रोमियो का उसका 6 बाब उसकी 12 आती है, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे। ਇਹਦਾ मतलब है गुनाह जड़ा है इंसान की जिंदगी च बादशाही करता है। अगर गुनाह बादशाही कर रहा है तो फिर ਇਹਦਾ मतलब है कि साडा बादशाह कोई और है। ये उम्मत मुंह से तो मेरी तज़ीम करती है लेकिन दिल इनके मुझसे दूर है। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही, इसलिए हमने गुनाह को अपने जिस्म पर बादशाही नहीं करने देनी। हमने इनको मुर्दा करना है, इन ख्वाहिशों को मुर्दा करना है, ताकि हम क्या हो जाएं, खुदा की इबादत के काबिल हो जाएं और वो इबादत करें जो मकबूल इबादत है, वो इबादत जो खुदा कबूल करता है। इस बाप उसकी 27 में आती है, क्रंचिस पहला क्रंचिस नामा बाप उसकी 27 में आती है। मैं अपने बदन को मारता और कूटता, मैं अपने बदन को मारता और अपने काबू में रखता हूँ। अपने क्या हम अपने बदन को काबू में रखते हैं? इसमें हमारी जुबान भी है, हमारा पेट भी है और हमारे हाथ भी हैं, हमारा किरदार भी है और हमारा चलना फिरना उठना बैठना सारा कुछ शामिल है। कि ऐसा ना हो औरों में मुनादी करके आप ना मकबूल ठहरूं। आप क्या करूं? औरों में मुनादी करके ना मकबूल न ठहरूं। ना मकबूल, कभी कभी हम ख्याल कर रही है भी खादा भी कि कहीं हम मुनादी करने वाले न रह जाएं। ये मेरे लिए भी है, मैं कहीं मुनादी करने वाला न रह जाऊं, दूसरों पर इल्म चाड़ने वाले न मैं रह जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही फंस जाऊं। पलूस उससे फिक्र करता है, कहता है मुझे अपने बदन को भी कुर्बान करना है, कहीं मैं मुनादी करने वाले न रह जाऊं। इसलिए खुदा इन बातों में कुर्बानी मांगता है। आमीन।